So let's begin here. Firstly, I would like to thank this platform, UPSC Time, for giving me this opportunity to interact with the fellow aspirants and share my story, share my strategy. So first of all, a very big shout out to the team, and um, so let's begin. I'll start by introducing myself. My name is Mukul Jindal. I've recently secured All India Rank 243 in the Civil Services examination, and this was my fourth attempt and my first interview. Earlier in my attempts, I gave my first attempt in 2022, and that was my first attempt right after graduation. I was able to clear the prelims examination, but however, since I was not very well prepared for the mains exam, I missed the cutoff by 19 marks. Then similar thing happened in the 2024 exam, wherein again I was able to clear the prelims exam by a good margin of near about 9 to 10 marks above the cutoff. But because of a small misinterpretation issue in the essay paper, I was not able to again clear the cutoff in 2024 mains exam. I missed that cutoff by 4 marks, and that was very heartbreaking for me. But luckily, in this attempt, I was able to glide past all the phases of the exam. So I would like to share small bits and pieces from my strategy, from my journey, how it unfolded, so that it could help a lot of you. Maybe some of you can get some much needed clarity out of from what I did. So guys, देखिए, I have been from engineering background. In engineering, what happens is, like, we in 11th and 12th, I studied non-medical. Like, my subjects were physics, chemistry, and maths. The nature of all of these subjects is कि हमें ना बहुत थोड़ा पढ़ना होता है. पढ़ना as in कि there are like 5 to 7 formulas, and they can make a whole paper, like whole subject. I mean, sorry, a whole chapter. Just a whole chapter is based upon just what 5 to 7 formulas. But in UPSC preparation, that is very different. In UPSC preparation, what we have to do is, like, we have to study humanities subjects, which are so full of data, facts, and information which we have to cram. So I was really unsure ki how would I manage this, because earlier I used to just cram 4 or 5 formulas, and my whole chapter would be based upon them. So it was then I decided that I cannot cram so many things. Like, there are literally thousands of pages of material just for one subject. And in the actual exam, I would be having more than 10 to 12 subjects. So my idea was, then I decided that I will keep the things very minimal. Matlab, I would just pick up one book per subject, and other than that, I won't be able to, be able to do anything. So that is what I did initially for prelims. Like, some of you are asking the strategy for prelims. So I would say my strategy for both prelims and mains, if I could just define the principle behind my strategy in one word, that would be minimalism. कि भाई हम चीज़ों को बहुत कम रखेंगे एंड बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रखेंगे. जिस बुक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब अगर लेट्स से 20 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम पॉलिटी, एंड उसमें से अगर 15 क्वेश्चंस एक ही बुक में से हैं, तो बस मैं एक वाली बुक पढ़ लूँगा. अब वो बाकी 5 क्वेश्चंस हो सकता है अलग अलग 5 बुक से आ रहे हो, बट आई वोंट वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी एंड माई एफर्ट कि अब मैं और 5 बुक्स पढ़ने लगूँ या किसी और पर्टिकुलर टीचर के लेक्चर्स देखने लगूँ. इससे बेटर मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट टेक अप वन बुक विच इज़ लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, एंड आई वुड जस्ट डू इट बाय हार्ट. मैं उसका एक एक प्रोविजन आई वुड जस्ट अब्सॉर्ब इट. इतने अच्छे से अब्सॉर्ब कर लूँगा मैं कि इफ समवन वेक्स मी अप in the middle of the night and asks ki, what is this provision, what is article 356, or what is the power of president compared to the prime minister or compared to the governor, मेरे को वो एकदम याद होगा. इससे होता क्या है कि व्हेन आई एम इन द एग्जाम, वो ऑप्शंस बहुत क्लोज सेट कर देते हैं, या फिर देयर वुड बी सम एलिमेंट ऑफ द ट्रिक, सम एलिमेंट विच इज बाउंड टू कंफ्यूज द एस्पिरेंट. अब अगर मेरे को वो प्रोविजंस बाय हार्ट याद नहीं है, आई विल गेट कन्फ्यूज, आई विल टेक टाइम,
एंड आई विल स्टार्ट पैनिकिंग. दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब आपको अच्छे से चीज़ें याद नहीं होती. तो इसीलिए मेरी हमेशा से पॉलिसी रही है, आई वुड जस्ट टेक अप वन सोर्स, आई वुड कीप द थिंग्स वेरी मिनिमल, एंड मैं उनको मतलब अच्छे से रट जाऊँगा. तो हर सब्जेक्ट के लिए यार मैंने तो देखो यही किया, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जोग्राफी, करंट अफेयर्स. आई केप्ट थिंग्स वेरी मिनिमल, जस्ट टुक वन बुक, वन सोर्स, एंड मैंने मेक श्योर किया कि मैं उसको अच्छे से याद करूँ. आई वुड लाइक टू गिव यू एन स्मॉल एग्जाम्पल इस चीज़ को समझाने के लिए. मैं बहुत लोगों को चीज़ बताता हूँ. आपने मेरे ख्याल से एक मूवी देखी होगी, चांदनी चौक टू चाइना. उसके अंदर से एक चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई, एंड कोइंसिडेंटली आई वाज वाचिंग दैट मूवी अगेन व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन. उसमें जब अक्षय कुमार इज ट्रेनिंग फॉर कंग फू, मे बी टुवर्ड्स द एंड, जो उनके टीचर होते हैं वो उन्हें एक चीज़ कहते हैं कि मुझे उन 1000 मूव्स से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस किया है. तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, कि आप एक बुक को पकड़िए, उसे 1000 बार पढ़िए. अगर मान लो पीपल से कि 5 रिविजन्स सफिशिएंट हैं या 6 रिविजन्स सफिशिएंट हैं, आई डोंट लुक एट इट इन दैट वे. मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि आप, अब मेरे को याद हो गया कि नहीं. अगर मेरे को 5 रिविजन्स में वो बुक याद हो गई है, सो देन 5 रिविजन्स आर सफिशिएंट. बट अगर वो मुझे 10 रिविजन्स में भी नहीं याद हो रही तो मुझे और रिवाइज करना पड़ेगा. एंड यही मेरी आप सभी से आपको सभी को एक सजेशन है, एक एडवाइस है. अपने सोर्सेज कम रखिए, उन्हें रट डालिए. बस इतने में आपका ये यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा. इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए एक बुक की, लेकिन आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए. तो ये मेरी एक ये मेरी स्ट्रैटेजी रही, मोर और लेस मिनिमलिज्म की. उसके बाद मैं आपके साथ अगेन जैसे मेंस प्रिपरेशन के लिए भी अगर मैं आपसे बात करूं, मेंस प्रिपरेशन में भी मैंने वही रखा. देखिए आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए लेट्स से एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या लेट्स से टेररिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टेररिज्म, या व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, व्हाट स्टेप्स द गवर्नमेंट हैज़ बीन टेकिंग इन द पास्ट, या आगे क्या कर सकते हैं. देखिए बिलीव मी और नॉट, आपके पास सिर्फ 2 पेजेस हैं लिखने के लिए, एंड आपको लिखना उसको 7 मिनट्स में है. तो इट डजेंट रियली मैटर यार कि आप मतलब बहुत सारा दुनिया जहान का कंटेंट पढ़ लें. आप चाहें तो टेररिज्म पे पूरी पीएचडी कर सकते हैं, 10 पेजेस के नोट्स, 15 पेजेस के नोट्स टेररिज्म पे बना सकते हैं. बट बिलीव मी यार, आप वो लिखेंगे कहाँ पे? अगर आप 10 पेजेस के नोट्स बना लेंगे, आपके पास लिखने के लिए तो वहाँ पे सिर्फ 2 पेजेस हैं. तो अपने नोट्स भी इसी तरीके से बनाइए कि आप उनको मतलब जल्दी से कंसाइज करके लिख सकें. दुनिया जहान का आप ना मटेरियल इकट्ठा कीजिए, ना ही उसको आप वहाँ पे एग्जामिनर को शो ऑफ करने की कोशिश कीजिए. आप बस कोशिश कीजिए हर चीज़ के ऊपर 2 से 3 पेजेस के नोट्स हों, बस 4 पेजेस के नोट्स हों हर टॉपिक के ऊपर, एंड उसको भी एंड टुवर्ड्स द एंड कंसाइज कर लीजिए. अपना जस्ट कंसाइज देम, पुट देम, मेक देम काइंड ऑफ अ शॉर्ट नोट्स टुवर्ड्स द एंड, जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स लिखे होते हैं, एंड उसी चीज़ से आप अपने आंसर को आंसर कीजिए मेंस के अंदर. देखिए मेंस के अंदर क्या बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं. क्वेश्चन में कभी कभार मान लीजिए 4 चीज़ें पूछी हैं, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ 2 चीज़ें लिख देते हैं. वो ठीक से पढ़ते ही नहीं है कि यार 2 चीज़ें और भी पूछी हैं. जब आपने आधा ही पार्ट आंसर किया, मान लो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, उसमें 4 चीज़ें पूछी हैं, आपने जल्दी जल्दी में सिर्फ 2 चीज़ें एड्रेस कर दी, तो अब एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा ही आउट ऑफ 7. एंड दिस इज़ ह्यूमैनिटीज़, इसके अंदर पूरे मार्क्स नहीं मिलते, कभी भी नहीं मिलते. तो मतलब 7 में से अब वो मैक्सिमम आपको 2 मार्क्स दे देगा. बट हाँ, अगर आपने वही चारों के चारों पार्ट्स एड्रेस किए होते तो आपको मार्क्स 15 में से देता है, एंड आपको 6.5 मार्क्स तक भी मिल सकते थे. तो इस चीज़ का आप बहुत खास ध्यान रखिए अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो बिल्कुल अभी टाइम में आंसर ख़त्म करने की रेस में मत पड़िए. अभी आप बिल्कुल आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए. मान लीजिए आप क्वेश्चन को ना क्वेश्चन की तरह मत देखिए कि कोई आपसे मतलब एक एग्ज़ाम में कुछ पूछ रहे हैं. आप सिंपल सी बात कीजिए. मान लीजिए आप और आपका दोस्त कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपने अपने दोस्त से, आप कुछ कंफ्यूज हैं किसी एस्पेक्ट में, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, यार मैं इस प्रॉब्लम से जा रहा हूँ, क्या करें. आपने मान लो उसमें 3-4 चीज़ें पूछी, आपका दोस्त बस एक चीज़ बता देता, आपको कितना बुरा लगेगा, या आपको ऐसा लगेगा कि सेटिस्फैक्शन नहीं हुई यार. वैसे ही जस्ट इमेजिन कि
आपसे एक दोस्त है, आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको उसको जो जो चीज़ें उसने पूछी हैं आपको सारी चीज़ें बतानी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आंसर राइटिंग में एक और चीज़ कहूँगा, द मिस्टेक विच आई मेड इन माई 2024 एग्जाम, उस मेंस के अंदर मैंने क्या गलती करी। उस मेंस में मेरे को GS 1 2 3 4 में 395 थे। दिस ईयर इन GS 1 2 3 4 आई हैव रिसीव्ड 444 मार्क्स, सो विच आई सी एज अ वेरी 440 मार्क्स, अ वेरी कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट। एंड इसका एक कोर रीज़न मैं बताऊँगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन दीजिए, पहली हेडिंग बनाइए। हर हेडिंग के नीचे आप जो पहला और दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, दोज पॉइंट्स शुड बी द मोस्ट रेलिवेंट पॉइंट्स, मोस्ट रेलिवेंट पॉइंट्स बेस्ड अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद आप साइड फ्रिंज पॉइंट्स वगैरह सब लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पहले फ्रिंज पॉइंट्स लिखने लगेंगे तो एग्जामिनर को मे भी इंप्रेशन पड़ेगा कि यार आपको ना कोर चीज़ नहीं पता। अगर आपका लेट्स से फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप फिफ्थ पॉइंट बना रहे हैं, तब तक एग्जामिनर को ऐसा फील आ चुका है कि मे बी आपको शायद असली चीज़ पता ही नहीं है, तो वो आपको कम मार्क्स देगा। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि लेट्स से वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, इंडिया में वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, उसके रीजंस पूछे जा रहे हैं। GS 3 के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? दो तीन अगर मैं सबसे बड़े रीजंस बताना चाहूँ आपको, एक तो हो गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारा बहुत ज़्यादा वाटर एक्सट्रैक्शन है, क्योंकि हम राइस एंड व्हीट क्रॉप्स को कल्टीवेट ज़्यादा करते हैं, विच आर नॉट वाटर एफिशिएंट। एक रीज़न आपका ये हो गया। दूसरा रीज़न जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हो गया क्लाइमेट चेंज। ये दो रीजंस मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी इसके अलावा लेकिन और भी कुछ कुछ रीजंस हो सकते हैं कि लेट्स से हम डोमेस्टिक लेवल पे वाटर को ठीक से यूज़ नहीं करते, एक वो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन ये साइड पॉइंट हो गया, मतलब एक थोड़ा सा मतलब लेस इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। या फिर जैसे कंस्ट्रक्शन एंड ऑल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वहाँ पे वाटर। लेकिन अगेन ये एक थोड़ा सा साइड लेवल का पॉइंट हो गया। तो बेटर ये रहेगा कि ये वाले पॉइंट्स आप बाद में लिखें, एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, जैसे मैंने बताया क्लाइमेट चेंज या फिर एग्रीकल्चर के अंदर वाटर का ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं है, या जैसे कि आपका हो गया कॉन्क्रीटाइजेशन हम लोग कर रहे हैं तो वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये पॉइंट्स आपके स्टार्टिंग में आने चाहिए। इसके अलावा के जो पॉइंट्स हैं आप बेटर है कि उन्हें फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट लिख दें। इससे एग्जामिनर को लगता है कि हाँ, इस बंदे को कोर चीज़ भी पता है, कोर आइडिया भी पता है, एंड इसके अलावा भी इसको चीज़ें पता है। ही ऑल्सो नोज द साइड द लाइक अदर डायमेंशंस एज वेल, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल आंसर हमारे को लिखना होता है। इस चीज़ को आप माइंड में रखते हुए अपने आंसर्स को सॉल्व कीजिए। फिर एक और चीज़ मैं काफ़ी बच्चों के कमेंट्स में देख रहा हूँ कि दे वांट टू नो हाउ टू एनालाइज PYQs। देखिए, PYQs इस पेपर का मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा एक क्रूशियल पार्ट है। मतलब लिटरली एवरी रैंकर सेज कि आपको PYQs सॉल्व करने हैं, आपको PYQs सॉल्व करने हैं, उनको एनालाइज करना है, बट कोई नहीं बताता कि कैसे करने हैं। इफ़ आई लुक एट प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे आपको बहुत सारी ट्रिक्स एंड ऑल सब आपको मिलेगा, बट द प्रॉब्लम इज वो ना उन्होंने एक एक कोई भी यूट्यूबर होगा, कोई भी होगा, मतलब स्टूडेंट होगा या वट एवर, जिसने वीडियोज़ बना रखे होते हैं, दे विल टेक अप वन स्टैंड अलोन क्वेश्चन एंड उसमें कुछ तिगड़म लगा के उसको सॉल्व कर देंगे। नाउ बिलीव मी, अगर आप मेरे को अगर आंसर पता है ना क्वेश्चन का, तो मैं उसको कुछ भी करके सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन एक्चुअल एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल एग्जाम में हमारे पास आंसर नहीं होता, पहले हमारे को लॉजिक से सोचना होता है। तो देखिए तरीका क्या रहता है PYQs एनालाइज करने की। पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ। पहले प्रीलिम्स के अंदर बात करते हैं PYQs की। आपको सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि पढ़ना क्या है। प्रीलिम्स अगर आपको क्लियर करना है, आपको 60-65 तक मार्क्स अपनी नॉलेज पे लेके आने पड़ेंगे, अपनी स्टैटिक पार्ट से लेके आने पड़ेंगे। बुक लिस्ट आप किसी भी एक टॉपर को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसकी किसी भी टॉपर की बुक लिस्ट, ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सारे सोर्सेज अच्छे होते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उन सोर्सेज को आपको चाट जाना है, रट्टा मार लेना है। यू जस्ट हैव टू डू दो सोर्सेज बाय हार्ट। इससे क्या होता है कि व्हेन यू डू दिस, आप 60s के अंदर आपका स्कोर इन प्रीलिम्स आ जाएगा। बट बिलीव मी, प्रीलिम्स में एक लिमिटेशन है नॉलेज की।
आप 60s से ऊपर नहीं जा सकते, उसके आगे यू नीड सम strategy, some analysis of the PYQs. You have to find out the traps which the examiner has been setting up over the years. ये चीज़ एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो ऑब्जेक्टिव होता है PYQs एनालाइज करने का। आपको समझ में आता है कि किस तरीके की स्टेटमेंट, किस तरीके की वर्डिंग हर बार सही हो रही है, एंड किस तरीके की वर्डिंग मतलब हर साल गलत हो रही है। ये चीज़ें आपको समझ में आने लगती है। आपको एक्सट्रीम वर्ड्स को कैसे डील करना है, कौन सा वर्ड एक्सट्रीम है नहीं। कभी कभार कुछ एक्सट्रीम वर्ड होता है लेकिन वो इस तरीके से यूज़ किया हुआ होता है कि यार वो वहाँ पे सही लग रहा है, वो चीज़ आपको समझ में आती है। बेसिकली इट हेल्प्स यू गो बियॉन्ड द नॉलेज। 60s में अगर आपका स्कोर स्टक है, PYQ एनालिसिस कैन हेल्प यू टेक इट इनटू 90s। एंड इसमें एक चीज़ और होती है कि जब आप PYQs एनालाइज करते हो, आपको ये समझ में आता है कि स्टैटिक पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक पार्ट भी बहुत बड़ा है। अगर आपको पता है कि यार अच्छा PYQs में ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप स्टैटिक पार्ट को उसी तरीके से एफिशिएंटली पढ़ पाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड I also run a small Telegram community. I started it in 2024, basically to teach CSAT to people, to my friends only. It was a group of just 15 to 20 people, जो मेरे juniors थे, and who were facing issues in CSAT. I started it in 2024 attempt, and by the name of CSAT Mavericks. Now it has grown to more than 5,000 members. And वहाँ पे भी last year we did the same thing. We did a very dedicated PYQ analysis of last 8 to 10 years. And this year also we are planning, because I literally received personal messages from a lot of aspirants. Last year your initiative was of very like immense help, and that is why this year also we are planning a very similar thing. You can reach out to me on Telegram. My channel's current name is UPSC Mavericks. You can reach out to me, and उस पे I'm also sharing a lot of, I've shared my book list. I'm sharing a lot of other wisdom which has helped me. Like I'm basically sharing the concentrate of my preparation over the 4 years. और देखिए अभी 20-25 मिनट में हर चीज़ बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ग्रेजुअली एज एन व्हेन वी मूव अहेड, जैसे जैसे हम धीरे धीरे करके आई एम शेयरिंग अ लॉट ऑफ द विजडम ओवर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा सभी एस्पिरेंट से। देखिए सम ऑफ यू आर आस्किंग कि PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं नहीं। देखिए कभी कभार हो भी जाते हैं, लेकिन उसका वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि आपको सेम क्वेश्चन रिपीटेड चाहिए। PYQ से आपको समझ में आता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कैसे पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको कितनी डेप्थ में पढ़ना है। ये ऑब्जेक्टिव होता है PYQs का। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हो भी जाता है, ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा, कभी कभार हो भी जाता है। मेंस में तो काफ़ी बार हो जाते हैं, बट वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता। उससे आपको पता चलता है कि आपको किस डेप्थ में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। एंड दिस इज़ व्हाट वी डिड लास्ट ईयर इन द स्ट्रक्चर्ड GS-PYQ एनालिसिस इनिशिएटिव, and this is what we are planning for this year. I've shared my Telegram handle with you. You can reach out to me over there. We can discuss anything that you personal level पे भी. And just one last thing, given the limited time that was given to me, just one last thing that I would like to share is, देखिए mindset बहुत ज़्यादा important है। आप अपने आप को हर रोज़ बोलिए, सुबह उठ के बोलिए कि दिस ईयर आई विल बी सक्सेसफुल इन दिस एग्ज़ाम। आपका सबकॉन्शियस उसको उसी तरीके से प्रोसेस करेगा, एंड इट विल मेक थिंग्स हैपन फॉर यू। एंड मेरे को भी ये चीज़ नहीं पता थी, मैं भी बहुत पहले स्ट्रेस में रहता था, एंग्जाइटी में रहता था, एंड दैट इज़ व्हेन आई रेड दिस बुक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दिस हैज़ बीन लाइक very life changing book that I have read. So अपने mindset को आप एकदम winner mindset रखिए, that is very important. Okay, someone is asking how many hours do you study? देखिए यार इस चीज़ में मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा। मैंने कभी मैं 10, 12, 15 घंटे कभी नहीं पढ़ा, और ना ही मैं पढ़ सकता हूँ। बट हाँ, ये मैं कहूँगा मैं डेली 7 to 8 आवर्स पढ़ता था, विदाउट एनी एक्सेप्शन। मतलब अगर मेरी तबीयत ख़राब है तब भी 7 to 8 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है।
लेकिन हाँ 7 से 8 घंटे से ना कम ना ज़्यादा। संडे को मैं एक ब्रेक लेता था अपनी। संडे को आई यूज़ टू ऐसे मैं थोड़ा रिलैक्स करता था, मैं कहीं बाहर खाने चले जाता था, मूवी देखने चले जाता था, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लिया, समथिंग और द अदर। तो मेरी अप्रोच यही रहती थी। लेकिन हाँ 7 to 8 आवर्स जब मैं पढ़ रहा हूँ तो ना मेरे पास फ़ोन होगा, ना मैं किसी से बात करूँगा, ना मैं कोई घर का काम करूँगा, मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूँगा इन दोज 7 to 8 आवर्स। ये चीज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव स्टडी, क्वालिटी स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन क्वांटिटी ऑफ द आवर्स। तो आई टेक अप सम ऑफ द डाउट्स। वैसे तो मैं साथ साथ उनको एड्रेस कर ही रहा था। पी वाई क्यूज़ के ऊपर काफ़ी डाउट्स हैं, कैसे पी वाई क्यूज़ को एनालाइज एंड ऑल कैसे करा। उसके लिए मैंने आपको बताया कि आई हैव रोल्ड आउट अ वेरी डेडिकेटेड इनिशिएटिव, क्योंकि ऐसे 10-15 मिनट में वो बताना लाइक दैट वुड बी हाफ नॉलेज, एंड हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आई वुड सजेस्ट आप एक बार यू कनेक्ट विद मी ओवर देयर। एंड कॉलेज फर्स्ट ईयर से तो यार अभी आप प्रिपरेशन मत शुरू कीजिए। मैं कहूँगा कॉलेज के अंदर आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कुछ कुछ नया सीखने की, वहाँ पे फोकस कीजिए। न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। न्यूज़पेपर, आप कॉलेज में हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। कुछ नहीं समझ में आ रहा आप चैट जीपीटी कीजिए, आप यूट्यूब पे जाके समझिए, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। खाली मेरे हिसाब से जो एनालिसिस वीडियोस होती हैं उसके भरोसे मत बैठिए। एंड उसके अलावा आई एम गेटिंग सम अदर डाउट एज वेल, जस्ट लेट मी लुक कि किसी का डाउट अगर मिस हो गया हो। बुक लिस्ट तो यार आप देखिए, आप या तो यू कैन अगेन ज्वाइन माय चैनल, वहाँ पे से आप थोड़ा देख सकते हैं, या फिर आप यू कैन रेफर टू एनी टॉपर्स बुक लिस्ट। मोर और लेस यार सबकी बुक लिस्ट कहीं ना कहीं जाके सेम ही हो जाती है। एंड बात वही है, द आइडिया इज द होल आइडिया बिहाइंड इट इज़ मिनिमलिज्म। आप 1 या 2 बुक्स पर पकड़िए हर सब्जेक्ट के लिए, एंड उसको बस आप रट्टा मार दीजिए, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट सीरीज यार आप ऑनलाइन ले लीजिए या फिर फ्री भी ले सकते हैं। मैंने तो मार्केट से मैं ऑनलाइन मतलब फ्री मार्केट से उठा लेता था मैं, ताकि मैं अपनी कन्वीनियंस पे भी दे सकूं। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगेन माई टेलीग्राम चैनल इज़ यूपीएससी मैवरिक्स, आप उस पर मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, I'll request UPSC Time to please provide the link as well in the description so that everyone can access it properly. So again guys, now it is time. I would like to thank all of you for joining me in this session. I hope that I was able to provide some valuable advice, some suggestion, was able to clear your doubts. And again, I would like to express my gratitude to the UPSC Time, this platform, for providing me this opportunity to interact with all of you. So thanks a lot everyone. Just stay disciplined, stay committed, and we'll all be successful. Okay, thanks a lot guys.